To start with, we are from Aptech Learning. Aptech is into IT learning for more than 30 years, and they have trained 75 lakh people. We are from Aptech Learning Sector 62. We have someone else has also joined. Hi. So we this webinar is on MIS. MIS includes different fields, like it's a package including Excel, Outlook, Word, PPT, and in advanced MIS there is accounting and finance as well. So over to Sonal ma'am. Sonal ma'am, please start. Okay. Others will join. Please up start कीजिए. Okay. Hello everyone. How are you? Okay. Can you see my screen? Yes, ma'am. We can see your screen. Okay. So we will discuss about MIS. Okay. So what is MIS? MIS is Management Information System, and it is used of information technology. You can say information technology and people and business process to record and store your according to your data process to produce information that discussion makers can be used. Make a day by day discussion. Okay. So the full form of MIS is Management Information System. Okay. And the purpose of MIS is to extract data from varied source and derive insights that derive business growth. Okay. So this is very vast, which can't be explained in just 45 minutes. So I'm going to teach you just a glimpse of what is Excel. We will discuss Excel, PowerPoint, Word, and MS Access also. Okay. So what are the tools available? MS Excel, MS Access, Excel VBA, and data visualization, and business intelligence and presenting MS PowerPoint and MS Word also. Okay. So where all MIS is used? Required for all departments of an organization like sales, revenue, targets, employee, okay, accounts also, delivery, delays and all. Okay. So we will start advanced Excel. I'm showing you some project that was developed by my students. This is the timetable. Okay. So this is the timetable. It is one project that was developed by my student. You can see. Okay. So there are many subjects like English, maths, and period assigned per week, Monday, Tuesday. This is the day and total and difference also. Okay. And next is class wise sub teachers allotment. This is based on advanced Excel. You can see on formula bar, if class wise, this is the formula. Okay. And next is teacher period load. You can see. And after that, according to teacher, weekly period load. Okay. And all timetable and class wise timetable also. And I'm showing you next project. It is based on cash flow statement. Can you see? So it is based on cash flow statement. So first sheet is based on cash flow statement for the year ending. You can write anything according to your date and your year ending, and you can write inventory purchase,
Other operations, customers, cash paid for, and cash paid according to you. You can write here, okay? And this is the formula. So if we write suppose this data, then you can result. Okay, and see. So next is 3-year cash flows. If you know cash flow, then it is very useful for you. Okay, and next is 12 months cash flow. You can see period beginning, period ending, cash at beginning of period, and cash at end of period. And this is the operation, investing activities. Okay, so there are some project. So we will start Excel. Okay, okay. So what is if condition and if function? I will show you some sheets. It is depend on if function. Okay, so this is the drop down. You can see. Okay, if you want to find out grade first value of the basic period according to this table, you can see this table. Okay, then what should I do? So this is the basic formula is equal to if bracket open logical test is d5 because d5 is drop down. Okay, and equals if grade value first, then print basic value first one. But again, if condition, and if d5 is equal to grade second, it can be happen, no? Then print this value. And again, if condition, and this value is equal to third one, then print this one. After that, otherwise this one, you can write, and close all brackets and enter. If you want to find out fourth value, then you can see grade fourth, the basic payout is 10450. You can check. And if we will select first drop down, then you can see grade first basic payout is 7950. And again, suppose we want to find out HRA value according to this drop down, then what should I do? Is equal to if this drop down equals this one, and what is your requirement? HRA. So J2, and then again if condition D5 equal to H3 because second one, and after that 25 J3. Okay, if you want to find out grade third, okay, so again we will make if condition and D5 equals third one, then HRA third value, and again otherwise fourth value, and then bracket close and then enter. Okay, so according to your drop down, you can see your data. Okay, okay, so we will discuss about and or function.
what is AND function and what is OR function. So suppose if we will write Sonal Rana, this is the employee name, okay, and designation is suppose anything like manager, whatever, okay. So if we write both data, if you will write both data, then after that you can see these data: conveyance, city allowance, other benefits, HRA, basic payout also. But if we have no one data like designation or no name of employee, then you can't see. So what should I do? Okay, so we will use OR condition. Before if condition, we will use if condition and then bracket open and then OR. If this data D5 equals blank and D6 equals to blank. If both are blanks, then we want to print blank. Otherwise, this one and bracket close. If you will write like a manager, then you can see data, correct? It's up to you. And again, we will make if condition and again OR, and suppose this data equals blank, comma, this data equals blank, bracket close, then comma, after that close. Any query? Hello? Hello, yes, ma'am. Any query? Got it? I think they don't have query. So Okay. please proceed. So can we proceed? Yes, yes, we can proceed. Amit ji, do you have any query? All are on mute. You can start. Proceed, ma'am. Okay. So next is VLOOKUP function. So what is VLOOKUP function and why we use VLOOKUP function? Then you can see VLOOKUP function is find value 40. If you find out 40 value, then comma table array, array is A2 to B15, table array. This is called table array, and 2 is column index number. Okay, so we will start VLOOKUP function. Okay, so what do you want to look up value? Like we have a table like this one. What do you want to look up? Like we want to look up this one. If we have one drop down or any data like uh, copy, okay, we want to look up grade value, okay, and we want to find out basic payout according to VLOOKUP. So the lookup number in the range contain the value to return. Example is equal to VLOOKUP. Lookup value is this one. Grade 1. What is VLOOKUP value? What you want to look up, okay? Where you want to look up for it, okay? And table array. Table array is what? Table range. Where we have to find the value. Yeah, table range, okay? After that, if you want to find out basic payout, basic value, then we will count.
column number. Column number is 1 and 2. Then we will write 2 and then comma 0. 0 is for what? Exact match. Okay. Correct? Yes, Return okay. an approximate match or exact match. Indicates true for approximate match and false exact match. And bracket close. So this is the basic for loop. Okay. If you want to use VLOOKUP with match, okay. So this is called as two-way lookup. Suppose if we have one drop down like lookup value, lookup, suppose Value. this one, copy and paste. Okay. And next drop down is according to column value. So we will go data and data validation, list, source, and basic, HRA, convent, CT allowance, and ESI, and then OK. So this is the another drop down. So what is the match? Firstly, what is the match? Do you know about that? What is the match? Yes, to find the correct value and match the function. एक चीज से दूसरी चीज से मैच करना. Right, but the match function search for the specified item in a range of cells. Okay, you can say it returns the relative position of the item in the range. For example, suppose H12, this is H1, no? H12 P1. Okay, so what is the column number of convents? So column number is 1, 2, 3, 4. Okay, if we use without match, we will use lookup value, VLOOKUP, then we will count. Okay, 1, 2, 3, 4 column number, na, we will count, na? Yes. Okay, but if we will use match value by the help of, I will show you by the help of an example. Suppose this is there are two drop down. This is lookup value and this is column value. Okay, suppose is equal to VLOOKUP. Lookup value is this one. Okay, and comma, what is the table array? Table array is all table range. Comma, column index number. We want to make a match. Okay. So we will use match, MATCH match, bracket open. So what is the lookup value? According to your drop down, no? This drop down. And again, comma, lookup array. So lookup array is what? H12 P1. H1 to V1. Okay. Fine. Comma 0. 0 for what? Exact match. And bracket close and then comma and 0. So this is two-way lookup. If we will select third, and we will select suppose basic payout, then you can see according to your drop down. Okay, you can see data. Any doubt? No. Okay, so this is match with VLOOKUP. So next is index with match. What is index? With match. Why we use indexing? Yeah. किसी भी चीज की मतलब ट्रू वैल्यू बताना कि इंडेक्स ये यहाँ से यहाँ तक है. Like जैसे बुक में होता है ना इंडेक्सिंग.
जी जी। तो उसमें कि पहले तीसरे पेज नंबर पे ये डिटेल्स है, फोर्थ पेज पे ये डिटेल्स है। व्हाट्स योर नेम? विकास। विकास। विकास, एक्चुअली व्हाट्स योर प्रोफेशन? आई एम जॉबलेस। ओके, मैं आपकी जॉब ज़रूर लगाऊंगी, ये मेरा वादा है। आई विल टीच यू थैंक यू मैम। डेफिनेटली। एक्चुअली होता क्या है, वी लुकअप में लेफ्ट टू राइट डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सपोज आपके लेफ्ट पास टू राइट। ये लुकअप वैल्यू है, ओके, और आप डेटा यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लुकअप वैल्यू, so we will use VLOOKUP. We can find out. Okay. Example, ओके। suppose VLOOKUP, if lookup value is this one and comma table array index number, table array is whole range and comma column index number is suppose basic payout or name, whatever. Okay. If we without use match, then we will count 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So column index number is 9 and comma 0. 9। This is possible. You can find out. Okay. But if we have lookup value is this one. मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज लुकअप वैल्यू इस टेबल में, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये डेटा है, ओके, और आपको इस लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग ये डेटा फाइंड आउट करना है. यू कांट फाइंड आउट बिकॉज वी लुकअप ओनली लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, नॉट राइट टू लेफ्ट. यस मैम। सपोज अभी मैं लगा के दिखाती हूँ, वी lookup value this one, okay, comma lookup table array this one, and then what is the column index number is, if you find out HRA then we will count na 1 2 3. It's not कैन वी डू working. इट लाइक -1 -5? -5 means, अच्छा अपोजिट, अपोजिट। यस। अपोजिट फाइंड आउट करना चाहते हैं ऐसे, हाँ जी। यस। बट इट इज नॉट वर्किंग ना. यस, नॉट वर्किंग। So there is a problem in VLOOKUP na. So यस। we will go index because index left to right भी आई हैव work read करता one है. more thing or Google Sorry. to drop to I have read one more thing on Google. Yeah. For this drop down we can use choose function. Yeah, you can With choose, you can use choose function. But is it a ऐसे lengthy मैंने process गूगल ना? पे पढ़ा था। हाँ, लेकिन आपको काफी कंफ्यूजन हो गया होगा मेरे ख्याल से. वो हुआ ही नहीं फिर मेरे से। तो गूगल पे तो मिल जाएंगी बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर नहीं मिलेगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, कितना पढ़ना है, कितना इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, यस यस, कितना, एग्जैक्टली। क्या वो अगर आप MIS एग्जीक्यूटिव में जॉब लेना चाहते हो तो वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या क्या वहाँ हाँ पे जी। काम कराया जाता है, कौन कौन से जी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, आपको क्लियर कट प्रोसेस नहीं पता होगा, जी। तो उसमें प्रॉब्लम आती है. अब जैसे ये आपने पढ़ा तो ये वर्क नहीं करता है, ये लेफ्ट टू राइट ही वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट नहीं वर्क करता. राइट टू लेफ्ट मीन्स अगर राइट वाला लुकअप वैल्यू आप देंगे और लेफ्ट वाली वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसे नहीं करेगा। ये नहीं करेगा. इसीलिए इंडेक्स आया था. इंडेक्स जी। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों काम करता है. ठीक है. दोनों उसमें रो और सिनेरियो पे। कॉलम हमें दोनों यूज करना होता है. लाइक मैं एग्जांपल बताती हूँ. सपोज इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, सो एरे टेबल, एरे इज होल टेबल, एरे रेंज, टेबल रेंज, कोमा रो नंबर. टेबल। सपोज आपने बोला, हाँ, रो नंबर मीन्स इस टेबल में रो नंबर 2 पे है ये, बिकॉज आप दूसरे नंबर का चाहते हैं ना फाइंड आउट करना. रो नंबर इज 2 जी। एंड कॉलम नंबर इज, कौन सा वाला डेटा चाहिए आपको, ये वाला व्हाटएवर. सपोज 3 चाहिए तो आप यहाँ पे 3 कर सकते हैं, SRA है ना, तो फाइंड आउट कर पाए ना आप. 3। जी। तो इसलिए इंडेक्स की मतलब एक बार नीड. फिर से आप ये ट्राई एक बार फिर से बता सकते हैं ये वाला? ओके, देखिए सपोज आपने यहाँ पे लिखा है इंडेक्स
ये मैंने अभी विदाउट मैच का बताया आपको। इंडेक्स, एरे, पूरा एरे टेबल, हाँ आफ्टर दैट रो नंबर। एरे रो टेबल, नंबर इज, सपोज आप श्याम का फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो श्याम का रो नंबर क्या है, 1 2 3 4। बट देयर इज अ वन प्रॉब्लम, आपको 4, बार बार काउंट करना पड़ रहा है। अगर आपकी शीट बहुत बड़ी हुई तो अभी आई विल शो यू। और कॉलम नंबर सपोज 1 2, कोई भी कॉलम नंबर, एंड यू कैन फाइंड आउट श्याम के दूसरे कॉलम में 9780 है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या है, मैं दिखाती हूँ आपको। मैनुअली करना पड़ रहा है ढूंढ के। हाँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें तो स्मार्ट वर्क करना है ना। इसमें ऐसे तो देखो कल बहुत आएगा सारी तो चीजें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साजिद, सो मैंने ये बनाया कस्टम लिस्ट। ठीक है, अब देखो मैंने कितने डेट कितना लिखा, 290। आप क्या 1 सेकंड के ये अंदर ये 290 डेटा कैसे लिख हो गया? सकते हो? ये कस्टम लिस्ट है। तो मतलब ये बहुत सारी ये चीजें कैसे ऐसी किया है होती मैम है जो आपने? कस्टम लिस्ट में बनाना होता है साजिद डेटा। सिराज, अभी ओके। बताऊंगी आपको। हाँ, अभी एक मिनट। दूसरा सपोज हमने यहाँ पे डेटा लिख देते हैं, सपोज सेल 1, सेल 2, सेल 3। ठीक है, हमने यहाँ पे रैंड बिटवीन लगाया रैंडम नंबर के लिए। सपोज मुझे इतने नंबर से ये नंबर का डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये डेटा भी आप इतने कम टाइम में नहीं फाइंड कर सकते ना, अगर आपको रैंडम डेटा चाहिए। 290 हाँ डेटा रैंड कुछ बिटवीन फंक्शन सेकंड्स के को। अंदर हम रैट बिटवीन से कर सकते हैं। ओके, सो सपोज ये डेटा है ओके, हमारा, और मैंने यहाँ पे लास्ट नेम लिख दिया, एग्जाम्पल लास्ट। ऐसे कोई लास्ट नेम है। ओके, अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इस सेल्स 2 की वैल्यू मैंने इस शीट पे लाके रख दिया, और हमें इसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय के नेम चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे 4-5 तरीके से कर सकते जी हैं। सबसे पहली बात तो वी लुकअप से तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डेटा राइट में है। तो वी विल गो फॉर इंडेक्स, वी विल यूज इंडेक्स ब्रैकेट इंडेक्सिंग, ओपन एरे टेबल। तो ये हम पूरा एरे टेबल देंगे, कॉमा, उसके बाद रो नंबर। ओके, सो रो नंबर के लिए लगाएंगे मैच, अगेन मैच, एंड आफ्टर दैट लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमें इसके अकॉर्डिंग डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू देंगे। उसके बाद लुकअप एरे, तो लुकअप एरे के लिए पूरा डेटा क्या देंगे, जिसपे मैच कराना है। मैच तो मैंने लगा दिया, लेकिन हमें लुकअप एरे लगाना है ना। तो लुकअप एरे के लिए हम ये पूरा डेटा देंगे यहाँ से। सेल्स 3, सेल 2 था ना वो, आई डोंट हाँ रिमेम्बर, हाँ सेल 2 था। ये एड्रेस ले लेता है शीट का, तो ये पूरा हम एक बार में चूज कर लेंगे। उसके बाद 0। अब दोबारा एक और मैच लगाएंगे, वो लगाएंगे
कॉलम के लिए। क्यों? क्योंकि अगर Column हमारी के लिए। शीट बहुत बड़ी होती है तो बार बार थोड़ी ना काउंट करोगे कौन से वाला कॉलम का डेटा चाहिए, कौन से वाली रो का चाहिए, तो उसके लिए मैच यूज करेंगे। तो मैच के लिए हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू देंगे। लुकअप वैल्यू क्या देंगे? नेम, क्योंकि हमें नेम वाला डेटा चाहिए। और उसके बाद पूरे टेबल का एरे, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज एंड देन क्लोज। और फिर आप इसको ड्रैग कर सकते हो। मैं अभी इतना ही ड्रैग करूंगी, ठीक है? तो कितना भी तो आपको यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। अब मैच हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज सपोज आपका टेबल, जब आप काम करते हैं ना, तो वहां पे टेबल इतनी बड़ी होती है, तो आपको क्या पता ये कॉलम नंबर क्या है? फिर ना काउंट करते रहो 1 2 3 4, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम मैच के साथ यूज करेंगे। ओके, Okay. फाइन। Fine. नेक्स्ट आता है वर्ड, बट वर्ड के पहले हम थोड़ा सा VBA पढ़ लेते हैं। व्हाट इज VBA एंड व्हाई वी यूज VBA? VBA इज विजुअल बेसिक एंड एप्लीकेशन। ओके, Okay. so you know about VBA? No, no, I don't know. Okay, actually VBA stand for Visual Basic for Applications. Okay, you can see this is developer tab, and VBA allows to automate various activities in such like Excel, generating reports, preparing charts, graph, doing calculation, and you can this is automation activities. Okay, it is Okay. include macro also, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। और सबसे Macro. ज़्यादा एडवांटेज इसकी क्या है? दिस फैसिलिटी इज दैट you don't have any need to install Visual Basic on your desktop. Okay, because यहाँ पे डेवलपर टैब में Okay. Visual Basic हो। फाइन। सो छोटा सा स्टार्ट करते हैं कि वाई वी यूज VBA। So VBA is very simple to learn and require basic programming skills. तो एग्जाम्पल से देखते हैं। मॉड्यूल में जाएंगे। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपने ये कोई डेटा लिखा, ये कोई डेटा है, ओके। तो अब यहाँ पे लिखते हैं सम। तो ये सम हो रहा है, लेकिन जो ये सम वाला फंक्शन है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, एक्सेल का ऑन फंक्शन है, प्री डिफाइंड है। अब हम विजुअल बेसिक के बहुत सारे रीजन से यूज करते हैं, एक मोटा मोटा बता देती हूँ मैं आपको। कोई भी विजुअल बेसिक जैसे कि फंक्शनैलिटी है एक्सेल की, जैसे कोई भी फंक्शंस हैं, तो ये अलाउ करता है टू मेक एक्सेल बिहेव अकॉर्डिंग टू योर नीड। लाइक जैसे आपने इफ की बहुत सारी कंडीशन लगाई, चूज का फंक्शन लगाया बुल वी लुकअप के साथ, लेकिन आप वो फॉर्मूला इतना बड़ा बार बार लगा रहे हो, आपको इतनी मुश्किल हो रही होगी इसे, ये कैसे काम कर रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इस बड़े फॉर्मूले का एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं मतलब बना सकता हूँ और उसको मैं यूज कर सकता हूँ जब भी मुझे रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। जी। उसके लिए हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन की जगह यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे, जिसका कुछ भी नाम हो सकता है। तो सपोज हमने लिखा यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन का नेम हमने कुछ भी रखा, विकास सम। ओके, हमें दो वेरिएबल को ऐड करना है। मैं एक छोटा एग्जांपल आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो दो वेरिएबल को यानी कि दो नंबर को ऐड करना है। तो दो नंबर को ऐड करने के लिए जैसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड देन c इज इक्वल टू a प्लस b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, बस थोड़ी सी कोडिंग का काम करना है। सो फंक्शन नेम इज Okay. vikasam and there are two variable like num1 as integer. Integer is predefined data type, जो हमें ये बताता है या इस फंक्शन को ये बताएगा कि ये सिर्फ उन नंबर को ऐड करेगा जो इंटीजर होंगे। नंबर 2 एंड नंबर 1 also user defined variable as integer, और जो उनका एडिशन आएगा वो भी इंटीजर में आएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे एज इंटीजर।
आफ्टर दैट एंटर, ओके। देन हम वही फंक्शन का नाम लिखेंगे जो हमने बनाया, विकास सम इक्वल्स num num1 plus num2, and then save. To continue saving as macro free workbook, then press yes. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी डेटा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे रेफरेंस आएगा sum, this one and this one, enter, सम हो रहा है। आप यहाँ पे जो हो रहा है। चेंज कर रहे हो ये यहाँ पे भी चेंज होगा, करेक्ट। Correct. So I told you this is very vast, which can't be explained in just some minutes, 45 minutes, okay. Okay. So next is MS Word training, okay. So if you know like Word, suppose this is your Word file, I can check. जैसे वाटर मार्क लगाते हैं, अगर आप किसके बैकएंड में वाटर मार्क लगाना है, सपोज जैसे हमने यहाँ पे लिखा कस्टम वाटर मार्क में आप लगा सकते हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे टेक्स्ट, और फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट में लिख सकते हो कुछ भी, जैसे कि अपनी मेल आईडी या कोई भी हम लिख देते हैं यहाँ पे ऐप टेक, ठीक है। तो आप देख सकते हो पीछे इसमें कलर का भी होता है। तो ऐसे भी इसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं वर्ड में जो हम MIS में ही इंक्लूड करते हैं, और MS एक्सेस ऑल्सो, तो वो भी हम इंक्लूड करते हैं MIS के अंदर ही, ओके। MS Access. हाँ जी, हेलो, आप कुछ बोल रहे थे? Hello. हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, मैं नहीं, आवाज बीच में आ नहीं रही थी तो मैंने इस वजह से किया था। आप कुछ बोल रहे थे? एक्चुअली बीच में आवाज नहीं आ रही थी ड्यू टू नेटवर्क। ओके ओके, फाइन। सो मैं हम बात कर रहे थे कि इसमें हम एक्सेल, वर्ड, पीपीटी, MS एक्सेस, टैली, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूड कराते हैं। तो बहुत कम टाइम में इतना सारा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड में जी, वो है तो समझ गया। है ना। एक्सेल ही काफ़ी डिटेल यस। में है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बट आपको आइडिया हो गया होगा काफ़ी चीज़ों का, ठीक है। सो MS एक्सेस डेटाबेस के बारे में आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यस ये मैम। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। आपने सुना है इसके बारे में? जी, सुना है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ MS एक्सेस यही नहीं पता एंड व्हाट बस। इज द MS एक्सेस? MS Access. ओके, सपोज if you know about database, यस। ओके, डेटाबेस के बारे में बताते हैं। जैसे बहुत सारी वेयर वी फाइल्स एक हैव द कलेक्शन ऑफ डेटाबेस, डेटा। या करेक्ट करेक्ट करेक्ट। So it is member of the Microsoft Office applications, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें, ठीक है। तो अब MIS में इसकी भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेस डेटाबेस? वेरी सिंपल, Microsoft Access is an information management tool that helps to store information for reference like reporting, analysis, fine, and it helps you analyze Fine. large amount of information and manage related data more
इफेक्टिवली। ओके, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट की बहुत बड़ा डेटा है, आपको एक्सटर्नल फाइल में डालना है, वो भी आप इससे कर सकते हो। बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना है, बड़ी लार्ज डेटा में मतलब लार्ज अमाउंट का डेटा है, वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसकी यूजफुल चीज़ें हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है क्रिएट क्वेरी किया हुआ है, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स है, देयर आर 2 पार्ट्स, क्वेरी डिजाइन एंड क्वेरी विजार्ड इन एमएस एक्सेस। ओके, आई थिंक इसमें एमएस एक्सेस नहीं है। सो नॉर्मली मैं एमएस एक्सेस के बारे में आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये कैसे हम यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले एक होता है टेक्सचुअल क्वेरी लैंग्वेज, जो एसक्यूएल सर्वर में भी यूज़ होता है, तो कुछ कुछ उसकी तरह ही यूज़ होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव कर सकते हो, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, या आप अपने डेटाबेस में बहुत सारी फाइल्स को एक रिकॉर्ड बना सकते हो बाय द हेल्प ऑफ क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिज़ाइन, यू कैन सी। एंड इसमें आप आईडी भी बनाते हैं। आईडी होता है प्री डिफाइंड। सपोज एक तो जैसे कि कोई भी रोल नंबर है, 10th 12th का रोल नंबर, वो कभी रिपीट नहीं होता बिकॉज वो यूनिक आईडी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर किसी एम्प्लॉय के 2 नाम है और डेटा उनकी आईडी जो होती है वो पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है दोनों एम्प्लॉय का। तो अकॉर्डिंग टू आईडी, एम्प्लॉय आईडी, यू कैन फाइंड आउट योर होल डेटा, जिसका भी आपको फाइंड आउट करना है। चाहे वो किसी भी बहुत सारी टेबल्स में है, जैसे आपके पास 4 टेबल्स हैं और एक टेबल के अकॉर्डिंग आप दूसरी टेबल में डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप अगर कुछ चीज़ डुप्लीकेसी हो रखी है तो आप अकॉर्डिंग टू आईडी के अकॉर्डिंग वहाँ पे डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग। ये रवनीत मैम पढ़ाएंगी। रवनीत मैम, ओवर टू यू। हाँ जी, थैंक यू मैम। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, सो विकास, आप अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं? व्हाट इज अकाउंटिंग? ओके, यस, ये तो जानता हूँ मैम, व्हाट इज अकाउंटिंग। हाँ जी, व्हाट इज अकाउंटिंग बताइए। अकाउंटिंग बैंक डिटेल्स की ये अकाउंट फंक्शंस को यूज करने के लिए जो भी यूज होता है उसको अकाउंटिंग होते हैं, वही सही है। बेसिकली अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। ओके, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, कन्वर्स करते हैं टू आवर लैंग्वेज। इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है। सो अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। बिजनेस लैंग्वेज कैसे है? बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट बिजनेस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है। लाइक इट्स रिकॉर्डिंग, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कोई इवेंट हुआ, सपोज आज एक बिजनेस में एक एसेट खरीदी गई, तो रिकॉर्ड करना। क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करना, वो कहाँ जाएगी। क्लासिफिकेशन क्या होती है? अकाउंटिंग अगर आपको बेसिक्स मालूम है तो प्रॉफिट लॉस निकालना, एसेट लायबिलिटी। मेरा ड्यूरिंग द पीरियड प्रॉफिट लॉस क्या हुआ अकाउंटिंग पीरियड में, एंड व्हाट आर माय एसेट्स एंड लायबिलिटी। एक पर्टिकुलर डेट पे पोजीशन क्या है मेरी बैलेंस शीट की। ओके, सो बैलेंस शीट इज ऑलवेज एट अ पर्टिकुलर डेट। इस पर्टिकुलर डेट पे हम लिखते हैं एज ऑन 31st मार्च, 30th जून, वॉट एवर। एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज फॉर अकाउंटिंग पीरियड। मुझे गेन या लॉस क्या हुआ इस पर्टिकुलर पीरियड में, दिस इज फॉर पीरियड। जनरली फाइनेंशियल ईयर होता है April 1 to 31st मार्च, तो इट इज फॉर पीरियड। एंड बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पे हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज बताता है। सो अकाउंटिंग इज
आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू, क्लासिफाई भी कर दिया, ये इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, एंड देन उसके बाद में उसे क्लासिफाई कर दिया और समराइज कर दिया। समरी इंफॉर्मेशन कैसे होती है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैम ने आपको एक्सेल में बताया कैसे ऑटोमेट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कि कहाँ से कैश आया, कहाँ गया। सो बेसिकली 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं मोस्टली कंपनीज में। इट डिपेंड्स कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनीज के लिए कैश फ्लो बनाना मैंडेटरी है, एंड बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पार्टनरशिप फॉर्म डिफरेंट एंटिटीज हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। बट जनरली हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सो अकाउंटिंग हमें इन स्टेटमेंट्स के थ्रू बताता है व्हाट इज आवर फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है। So this is accounting. Accounting is a business language. Clear है? हेलो हेलो विकास, हाँ आप सुन पा रहे हो? क्लियर? हेलो, यस मैम, आई एम लिसनिंग। ओके जी, क्लियर। ओके। सो कम्युनिकेशन कैसे होता है हमने देखा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने अभी डिस्कस की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। व्हाट इज वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग? तो एज पर एन एनालिसिस हम लोग को 8% ग्रोथ CAGR will be seen in India from 2016 to 21, and especially after GST. Are you aware what is GST? यस, गुड्स एंड हाँ, सर्विस गुड्स एंड टैक्स। सर्विस टैक्स। सो प्रॉपर अकाउंटिंग जब तक नहीं होगी, देन प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वी कांट give these statements, we can't file proper returns with department. So there is increase in demand for finance and account professionals after GST. Okay, so accounting is not just कि आपने एक डेबिट क्रेडिट कर दिया, एक्सपेंस बुक कर दिया, एसेट लायबिलिटीज बुक कर दी। उसके अलावा अकाउंटिंग में एक मेजर पार्ट आता है कि हाउ टू रिकॉर्ड योर लायबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज। इसे मैं थोड़ा इलेबोरेट करती हूँ। व्हाट आर स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज? अगर सपोज आपने TDS का कॉन्सेप्ट सुना है, TDS TCS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ओके, अब एक प्रोफेशनल को आप पेमेंट करते हो बिजनेस में, देयर आर पेमेंट्स टू प्रोफेशनल, देयर इज लायबिलिटी while making payment or credit, whichever is earlier, you have to deduct a tax at source. उसके रेट्स डिफाइंड है, बट उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? सपोज अकाउंटिंग पर्सन को ये मालूम ही नहीं है कि TDS क्या होता है या TDS की एंट्रीज कैसे होती हैं, सो दैट इज नॉट कंप्लीट अकाउंटिंग। जस्ट एक्सपेंस बुक कर देना और पेमेंट्स बुक कर देने से नहीं काम चलेगा। सो TDS का क्या सेटअप होता है और TDS फिर कैसे रिपोर्ट होता है। ओके, ये तो हो गया एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आप कुछ परचेज करते हो, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लग के आता है, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, एंड that's a saving to business input tax credit. सपोज मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, मेरे पास में जो भी परचेजेस आती हैं और मेरे को GST लग के आया है, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे आउटपुट पे मिलेगा। जो मैं सेल करूंगी उसके अगेंस्ट में जो मैंने परचेज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया, वो मैं सेट ऑफ कर पाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की सेल्स की मैंने, GST रेट नॉर्मली मालूम है आपको क्या है? आप कहीं भी कुछ खाने जाते हो या रेस्टोरेंट में जाते हो, कुछ परचेज करते हो, तो देखते हो वहां पे बिल में नीचे लिखा होता है GST। कुछ रिकॉल कर पा रहे हो कैसे लिखा होता है? हाँ, कि खाने पीने पे 5% है, कपड़े पे 7% है, 12% है और 18% इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पर। यस, आपने देखा होगा CGST SGST वो लिखे होते हैं, आधा आधा होता है उसमें। जी, ठीक है ना, 5% है, 2.5% होता है। सो अब
अगर कोई बिजनेस खर्चा कर रहा है, परचेजेस कर रहा है, उसमें वो एलिजिबल है सेल्स पे उसको ऑफसेट करने के लिए। कुछ चीजें हैं जिसपे एलिजिबल नहीं है। अभी हम सिंपली बात करते हैं, अगर एलिजिबल है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। सपोज मेरा 100 रुपीज मैंने सेल्स किया और 18% टैक्स है, ओके। 80 रुपीज मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, लेकिन मैंने उस सेल को करने के लिए जो 100 रुपए का सेल किया, उस पे जो मैंने परचेजेस की वो 50 रुपए की परचेज की है। सपोज उस पे भी जीएसटी लग के आया होगा, से 18% से ही लग के आया, तो 9 रुपए का मुझे ऑफसेट मिलना चाहिए 18 के अगेंस्ट में, राइट। ठीक है, क्योंकि जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल पाता है। आप रिकॉल इसको मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो ना, या ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है? कॉम्प्लिकेट हो रहा है। चलिए मैं सिंपली बताती हूँ आपको कि सपोज मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ और मैंने अपने परचेज पे कुछ टैक्स पे किया है, जीएसटी टैक्स पे किया है, तो उस टैक्स को जो मैंने जितना पे किया और सेल्स की हैं उसी चीज की, सपोज मैंने एक कपड़ा खरीदा, उस पे कुछ टैक्स पे किया, सेल्स किया, उस पे टैक्स जो बनता है मैं अपने बिल में लगाऊंगी। वो टैक्स जो मेरे को गवर्नमेंट को देना है अपनी सेल्स पे, जो मैंने सेल्स की उसका तो मैंने कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है ना पैसा, ये तो क्लियर है। तो मेरी परचेज पे जितना भी इनपुट होगा मैं उसमें ऑफसेट कर पाऊंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग जस्ट डेबिट क्रेडिट नहीं करनी है, ये टैक्सेस टीडीएस एंड जीएसटी मेजरली दो ऐसे टैक्सेस हैं जिसकी अकाउंटिंग भी हमें सीखनी है कि कैसे की जाती है, राइट। तो ये हम पढ़ते हैं टैली के थ्रू। टैली विद जीएसटी का जो मॉडल है उसमें वी डू फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग एंट्रीज कहाँ कैसे होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कैसे करेक्टली बनता है, कैश फ्लो फंड फ्लो बन जाता है, उसमें बजट्स क्रिएट हो जाते हैं, ओके। तो एक अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग विथ दीज टैक्सेस करना। आप लोग इस ये रिटर्न्स जो प्रॉपर्ली टैली में एंट्री कर रहा है, तो ये जीएसटी की रिटर्न्स और टीडीएस की रिटर्न्स वहां से जनरेट हो सकती हैं टैली से, अगर प्रॉपर एंट्रीज की है। उसमें टैब्स होते हैं, दैट कैन बी डन थ्रू टैली ओनली, ओके। सो अकाउंटिंग जीएसटी में हम बताते हैं कि जीएसटी की एंट्रीज कैसे होंगी, टीडीएस की कैसे होंगी, और रिटर्न तक कैसे पहुंचना, और पोर्टल पे जाके क्या करना है, कौन सी रिटर्न्स फाइल होती हैं। इन्वेंट्री का मॉडल उसमें होता है। कोई इन्वेंट्री मींस स्टॉक, ठीक है, स्टॉक आया, फिजिकल स्टॉक कितना है, परपेचुअल रिकॉर्ड्स में कितना है। फिजिकल स्टॉक इज आपका स्टोर कीपर क्या दिखा रहा है। सपोज मैं गारमेंट परचेज कर रही हूँ, तो आपका स्टोर कीपर क्या दिखा रहा है, मेरे पास कितना गारमेंट पड़ा हुआ है, और मेरी बुक्स क्या शो कर रही हैं, ठीक है। एटलीस्ट एनुअली एक बार जरूर जहां पे कि ये स्टॉक मेंटेन होता है, फिजिकल स्टॉक, एक मैच रिकंसिलिएशन जरूर होता है। तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है। स्टॉक आपने जॉब वर्कर को दिया, सपोज गारमेंट इंडस्ट्री में आपने डाइंग के लिए बाहर कुछ मटेरियल भेजा, उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करनी है और उसका ट्रैक कैसे रखना है, कहाँ से जाके हम लोग देखेंगे उसमें कि मेरा स्टॉक किस जॉब वर्कर के पास में कितना माल पड़ा हुआ है। वो हमेशा हम लोग मैनुअली ना, वो टैली के थ्रू हम लोग मेंटेन करते हैं। सेल्स परचेज, कितनी सेल्स हुई, परचेज हुई, उस पर जीएसटी कितना परचेज लिया, कितना दिया, वो सब प्रॉपर अकाउंटिंग। अप टू जीएसटी रिटर्न्स कैसे बनती हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मेनली पर्पस होता है मेरा ग्रॉस मार्जिन कितना है, मेरा स्टॉक कितना है, ठीक है। सो ये सब अकाउंटिंग हम टैली ईआरपी 9 में करते हैं, ओके। यस, तो ये एक हमारे पास में है कोर्सेज। एक तो है टैली सिंपल, एक टैली विद जीएसटी जिसमें हम जीएसटी की प्रॉपर अकाउंटिंग और जीएसटी में और भी चीजें बताते हैं। ई वे बिल, एचएसएन कोड क्या होता है, एसएससी कोड क्या होता है, जीएसटी का सेटअप कैसे होगा, उसकी रिटर्न्स कैसे होंगी। तो ये सब एक अकाउंटिंग करना प्रॉपरली, इट्स अकाउंटिंग पैकेज कंप्लीटली। अकाउंटिंग में जस्ट ये नहीं कि किसी ने खर्चा बुक कर दिया या इनकम बुक कर दिया। इंडस्ट्री आज मांगती है कम से कम आपको वर्किंग नॉलेज हो कि आप टीडीएस या जीएसटी कैसे करोगे।
अब क्या होगा अगर अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं हुई है, रिटर्न के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं होगी। अच्छा मैडम, इसमें हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? इसमें ये पेएबल और रिसीवेबल क्या होता है? हाँ जी, मैं ये बोला था, इसमें पेबल और एक होता है ना पेएबल एंड रिसीवेबल, उसमें ऐसा होता है, कैश टू ऑर्डर टू कैश, हाँ O2C। उसमें ऐसा होता है, परचेज ऑर्डर्स भी क्रिएट करते हैं इन्वेंट्री मॉडल में। परचेज ऑर्डर के थ्रू कितने आपने परचेज ऑर्डर दिए हैं, अब जो परचेज ऑर्डर दिए हैं उसमें आप माल परचेज करेंगे और उसके बाद में आपका पेबल दिखेगा, राइट, अगर क्रेडिट पे माल परचेज किया है तो आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं एजिंग कि मुझे कितना पेमेंट कब करना है, ठीक है। और सेल्स में डेटर्स का देख सकते हैं कि मेरा कितना ओवर ड्यू हो गया है, वो एजिंग करते हैं हम लोग टैली में। ओके, सो पेबल रिसीवेबल्स मैनेजमेंट करते हैं हम लोग टैली में, ही होता है वो, उसमें काफी सारे फीचर्स होते हैं, लाइक सेल्स परचेज पेबल रिसीवेबल्स पे आपने बोला, बजटिंग कॉस्टिंग, बहुत सारे यूनिट्स हैं किसी के, तो उसमें कॉस्टिंग कैसे होगी, बजटिंग कैसे होगी, कोई बजट बुक करना है आपको, सपोज मैंने कहा कि मेरे कंपनी के लिए बजट, इतना बजट एडवर्टीजमेंट का है कि मुझे 1 लाख रुपए महीना एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना है, कहाँ कहाँ कितना खर्चा किया डिफरेंट ब्रांचेस पे, वो सब हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर्स बना के, बजटिंग करके, बजट के अगेंस्ट एक्चुअल का वेरिएंस की स्टेटमेंट आ जाती है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हो? जी समझ गया। ठीक है, सो ये सब, ये कह रहा समझ गया। हाँ ये सब प्रॉपर अकाउंटिंग है। और मैनेजमेंट को क्या चाहिए इसमें, मैनेजमेंट को ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि बता दो मुझे कि कितने बजट्स आए हैं आपके पास में, बजट से वेरिएंस कैसे आ रहा है। ये एक कंप्लीट MIS का पैकेज है जिसमें आपको इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, ये MIS से रिलेटेड रिपोर्ट्स जनरेट करना, और उन रिपोर्ट्स को एक्सेल में कैसे प्रेजेंट करेंगे, जो मैम ने एक्सेल बताया आपको, उसमें बार चार्ट्स वगैरह भी आते हैं, की लुकअप्स आते हैं, वो सब से कैसे हम प्रेजेंट करेंगे इंफॉर्मेशन को। तो दिस पाई चार्ट्स वगैरह, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स आते हैं, डैशबोर्ड्स आते हैं। एवरी मैनेजमेंट रिक्वायर्स दिस एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, एक बार तो महीने में मांगती है। सेल्स रिपोर्ट, कई जगह ये बहुत, इसमें डैशबोर्ड भी सिखाते हैं डैशबोर्ड उसमें टैली उसमें नहीं है, लेकिन हाँ हम बता देंगे, डैशबोर्ड में ऐसा कुछ खास नहीं है, अगर ये कंप्लीट पैकेज लेते हैं आप तो डैशबोर्ड भी बता देंगे। कैश फ्लो का मैम ने जैसे बताया कैसे ऑटोमेट, देखिए चीजें तो वही हैं, वो जो एक्सेल का रिबन है वो कंप्लीट वही है, टैली में भी जो फीचर्स हैं एवरीथिंग वी गो थ्रू कि किसमें क्या चीज होती है, क्या चीज कर सकते हैं हम। अब आप पे है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको कैसे एनालाइज कीजिए। तभी जैसे मैम ने दिखाया आपको कि किसी बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया एक एक्सेल पे कि आपको टाइम टेबल मेंटेन करना है, उसका ड्रॉप डाउन बनाया, उसके लिंक्स बनाए। तो आप एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, सो दैट यू कैन एनालाइज कि इसमें क्या चीज हम कर सकते हैं, एप्लीकेशन है उसमें बेसिकली। हम एक आध प्रोजेक्ट जरूर करवाते हैं, सबके सब सभी तरह के से करवाते हैं, जैसे कि मैम ने एक्सेल पे करवाया, एक छोटा सा एक्सेल का कोर्स एक्सेल पे करवाया, मैं टैली पे एंट्रीज देके रिपोर्ट जनरेट करो या रिटर्न्स जनरेट करो, वो सब करवाते हैं। वाई टैली, टैली को क्यों चूज किया? देखो, अकाउंटिंग एंट्रीज, एक चीज तो है कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे बनानी है, कैसे अकाउंटिंग करनी है और कैसे ऑडिट करवाना है, ये एक कंप्लीट पैकेज है। हर एक अकाउंटिंग फर्म में, चाहे छोटी से लेके बड़ी अकाउंटिंग फर्म में, ये रिक्वायरमेंट होती है, पहले रिकॉर्डिंग करो, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक कैसे पहुंचना है, ऑडिट कैसे करवाना है, कंप्लायंसेस कैसे करनी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये प्रॉपरली परफेक्शन से होना चाहिए। जनरली कंपनीज में क्राइटेरिया होता है कि आप कितना परफेक्टली करते हो, कितनी गलतियां, अकाउंटिंग की मैं बात कर रही हूँ, कितनी गलतियां हुई हैं, कितना परफेक्शन से आप करते हो। तो इसमें जस्ट ये नहीं कि टैली पकड़ा और आपको टैली सिखा दिया। टैली इज वन ऑफ मैकेनिज्म, आपको किसी भी सैप पे काम करना पड़े, ऑरेकल बेस्ड सैप पे करना पड़े, ERP पे काम करना पड़े, अकाउंटिंग एंट्री सेम ही रहेगी। टैली इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग बिकॉज इट इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड to provide financial solutions, मतलब सेकंड नंबर पे इन
होल वर्ल्ड इट इज यूज्ड, वाइडली यूज्ड। और ये एक सिर्फ मैकेनिज्म है अकाउंटिंग सिखाने का। यही फीचर्स किसी भी ईआरपी में होंगे। 2-4 घंटे से ज्यादा नहीं लगते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं सैप के लिए, आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए। दैट वी फोकस ऑन कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जस्ट ये नहीं कि टैली के फीचर्स बताने हैं, हमें प्रॉपर अकाउंटिंग आपको बतानी है, ताकि आप किसी भी एसएपी पे बैठे या किसी और सॉफ्टवेयर पे भी बैठे तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। टीडीएस क्यों, टीसीएस क्यों, कहाँ पे, वो सब रूल्स वगैरह हम बताते हैं इसमें। ओके ओके yeah, and it has tally has acceptance over 100 plus countries, right? So that's why we are using, it's a राइट mechanism, but basically ये टैली सिखाने का नहीं, अकाउंटिंग सिखाने का मैकेनिज्म है कि आप अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव लेवल तक कंफर्टेबली इस कोर्स के बाद में पहुंच सकते हैं, क्योंकि यू विल बी डूइंग अकाउंटिंग, यू विल बी डूइंग बेसिक वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्लायंस इज देयर। आज की डेट में टीडीएस और जीएसटी रिटर्न मोस्टली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है। जीएसटी भी कहाँ एप्लीकेबल होता है, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद जीएसटी में जैसे काफी और चीजें आती हैं। ई वे बिल कैसे जनरेट करना है, ई वे बिल होता क्या है, क्यों रिक्वायर्ड होता है, ये सब चीजें जरूरत पड़ती हैं। ओके सो ये इस पैकेज में हम लोग ये सब सिखाते हैं। अकाउंटिंग से लेके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको, वर्किंग नॉलेज ऑफ टैक्सेस एंड रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है। देन यस मैं कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जरूर इसमें कवर करती हूँ कि आप ऑडिटर्स को कैसे फेस करेंगे, क्या क्लोजिंग एंट्रीज हैं। दो इसमें टैली में ऑटोमेटिकली अगर आपने देखा हो तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह बन के आ जाती है, राइट? हेलो, नहीं मैंने अच्छा यूज नहीं यूज किया नहीं कभी किया। टैली। तो उसमें ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग एंट्री से करते, मेरे पास में अभी सिस्टम पे नहीं है, अकाउंटिंग एंट्री से करते ही प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह बन के आ जाती है टैली में। लेकिन आपको ऑडिट कैसे फेस करना है, सो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की आपका पर्पस क्या है, इंडस्ट्री में जाना, इंडस्ट्री में जाके आपको जो फेस करना पड़ेगा वो चीजें बताते हैं हम इसमें, राइट? कुछ क्वेरीज इस पे टैली पे अकाउंटिंग में? नहीं मैम। ठीक है, तो हमारे पास में कुछ ये कोर्सेस हैं, एमआईएस एडवांस, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद जीएसटी, स्मार्ट प्रो 2, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद जीएसटी में जीएसटी। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? काफी कुछ कवर। ये बोला था कि एमआईएस के साथ फिर बीबीए। एक एमआईएस है जिसमें कि बेसिक एमआईएस है, एक एडवांस्ड एमआईएस है जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद जीएसटी भी कवर होता है, जीएसटी के साथ। ओके ठीक है, और एक जी 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 सिर्फ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद जीएसटी है जिसमें कि अकाउंटिंग एंड जीएसटी कवर होता है। देन इससे एक अप लेवल आ जाता है जहां पे हम डायरेक्ट टैक्सेस काफी बताते हैं आपको, कंप्यूटेशन बनाना। आपने कंप्यूटेशन नाम सुना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हर एक को बनानी पड़ती है, या कोई रिटर्न फॉर्म भी फिल करते हैं तो उसमें कंप्यूटेशन बनती है कि आपकी सैलरी इनकम कितनी है, हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जी इस कोर्स जी में एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट भी आ जाता है। एक सिंपल कोर्स है टैली विद जीएसटी ऑपरेशन, सबसे छोटा कोर्स जो जीएसटी ऑपरेशंस के साथ में, और एक जो बहुत एग्जॉस्टिव कोर्स है, काफी चीजें इसमें कवर होती है कि बिजनेस प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम टैली जीएसटी, आपको बिजनेस में कैसे कम्युनिकेट करना है, मेल्स कैसे लिखनी है, उसके बाद में एक हमने अकाउंटिंग तो कर ली, लेकिन अकाउंटिंग से पहले क्या प्रोसेसेस होते हैं, लाइक सपोज मैं कहूँ परचेज ऑर्डर के क्या प्रोसेस होता है, या सेल्स ऑर्डर का क्या प्रोसेस होता है, सेल्स के जी कुछ बिजनेस स्टडीज हैं इसमें कि सेल्स को आप कैसे रीड करेंगे। कंप्लायंस है, कंप्लायंस में हम काफी कुछ कवर करवाते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जीएसटी में भी, लेकिन इसमें कंप्लायंस में हम एग्जॉस्टिव हर तरह की चीज करवाते हैं जो जो एप्लीकेबल हो सकती है। लाइक एक कंपनी में सिर्फ टीडीएस और जीएसटी नहीं हो सकता, कुछ चीजें फेमा और इनकम टैक्स से रिलेटेड भी होती हैं, उसके बारे में इंसाइट देते हैं। एक प्रोजेक्ट करवाते हैं टैक्सेशन पे,
आपने देखा होगा टेक्स्ट तो ठीक है, कंप्यूटेशन तो कर लिया, कंपनी की कंप्यूटेशन भी कर लिया, मैट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे कंप्यूटेशन करनी है, एंड देन आपको जब इंफॉर्मेशन आ जाए स्कूटनी के लिए, या कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाए आपसे एडवांस टेक्स्ट के लिए, या डिपार्टमेंट कुछ इंफॉर्मेशन मांगनी है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, उनको लेटर्स कैसे लिखनी है, बिजनेस में पीयर्स के साथ में कैसे कम्युनिकेट करना है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या चीज कैसे हैंडल करनी है, तो काफी सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इसमें कवर होते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई क्वेरी? नहीं मैडम, क्वेरी तो बस एक थी कि अकाउंटिंग तो मेरे ऊपर से गया हुआ है अच्छा, सीरियसली। और तो आप किस प्रोफाइल में काम एमआईएस वाला मुझे बहुत ज्यादा समझ गया। आप एमआईएस वीबीए, और फिर मैं सोचा था एसक्यूएल के साथ। आपका बैकग्राउंड मैं क्या एक है बेटा? प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंडियन कर रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा पे आपने बीकॉम वगैरह किया हुआ है क्या? नहीं। तो क्या क्या बैकग्राउंड है? और नहीं, मैंने बीटेक किया हुआ है। अच्छा, बीटेक किया हुआ है, और जॉब किस में की हुई है? जी, आपने शायद जॉब की हुई है, आप कह रहे थे अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले जॉब की है आपने। आई एम लुकिंग फॉर जॉब, जैसा कि सब बहुत ज्यादा इंडियंस कर रहे हैं आज के टाइम पे। नहीं नहीं, पहले ओके, अभी तो लुकिंग फॉर यही एक जॉब, जॉब है। बट आप मतलब फ्रेशर है बिल्कुल, आपने इस जॉब किया नहीं, बीटेक कंप्लीट किया है जस्ट नहीं ऐसा? मैडम, नहीं नहीं, एक्चुअली इससे पहले मैं एक्सेल में करता था, और वहाँ पे एनालिस्ट की प्रोफाइल थी। उसके बाद फिर मो मैजिक में करने लगा, तो वहाँ पे भी एनालिस्ट की ही प्रोफाइल थी। ओके, जी। तो फिर तो उसमें भी नॉर्मल छोटी मोटी रिपोर्टिंग वगैरह का ही काम था। तो फिर मैं ये कहूंगी कि आप टेक्निकल में क्यों नहीं जाते? आजकल पाइथन चल रहा है, अगर बीटेक किया हुआ है तो इस साइड क्यों आप? क्योंकि पाइथन इन इटसेल्फ बहुत इवॉल्विंग है, पाइथन के बाद भी जॉब्स मिलती हैं, पाइथन विद माई एसक्यूएल का कोर्स है हमारा। ओके, उसके जी। अलावा पाइथन बेस है, आप एक बार जॉब लो, पाइथन बेस है आगे फर्दर ग्रोथ के लिए। क्योंकि देखो, अकाउंटिंग आप सीखोगे तो सब कुछ स्क्रैच से सीखना पड़ेगा आपको, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, क्या स्टेटमेंट्स नहीं बनती नहीं है। नहीं, हाँ, तो लेकिन हाँ मैं ये मैं भी यही प्लान कर रहा था कि मैं एमआईएस वीबी और एसक्यूएल सीखूं, और उसके बाद फिर पाइथन सीखूं। ऐसा कुछ मैं अभी प्लान कर रहा हूँ। एमआईएस सीखने का क्या पर्पस है? जॉब लेने के लिए? हाँ, पाइथन करके जॉब लो। कहीं जॉब भी तो होनी चाहिए। पाइथन में पाइथन करके। जॉब्स निकलती हैं, आपकी मेहनत पे है, आप कैसे उसको टेकअप कर सकते हो, मैम प्रोजेक्ट बनवाती हैं उस पे। पाइथन पे लो जॉब, हम्म, सबसे बेटर हम्म, रहेगा। और हम्म, उसके बाद में आगे एक्सप्लोर करो डेटा साइंस या एआईएमएल। जितने में आप एमआईएस का कोर्स करोगे ना, एमआईएस का कोर्स, अगर मैं बेसिक हाँ एमआईएस का कोर्स की बात करती हूँ, तक उससे कम में आपका पाइथन हो जाएगा, और उसी लेवल की जॉब लग जाएगी जो आप अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो। और उसके बाद फाइनेंस करना कर सकते हो, और करना चाहते हो तो डेटा साइंस पे जाओ। पाइथन का कोर्स जी। हमारा है 10975 का, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। और सिर्फ बेसिक एमआईएस अकाउंटिंग ना भी इंक्लूड करे तो बेसिक एमआईएस का कोर्स ही जो है वो आपको पता है 5 महीने का कोर्स है, उसमें तकरीबन आप डिस्काउंट के बाद में भी 13-14 हजार रुपए का पड़ जाएगा, राइट? और इस पे भी डिस्काउंट चल और रहे पाइथन हैं। में कितने का पड़ेगा? पाइथन का आपका 20% डिस्काउंट अभी चल रहे हैं, जो भी होगा बेस्ट राशि मैम आपको बता देंगी। और जी। उसमें ये है कि आप अपने टेक्निकल लाइन में जाओगे, और उसके आगे बेस यस मैम। बनाओ, जॉब लो। जॉब्स अभी पीछे निकली हुई थी 2-3 हफ्ते पहले, लास्ट वीक, लास्ट टू लास्ट वीक निकली हुई थी। और हम सिर्फ पाइथन नहीं जी। करवाते हैं, हम पाइथन विद माई एसक्यूएल करवाते हैं। काफी टाइप्स हैं, डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए बहुत ओपनिंग्स हैं आज की डेट में, आप गूगल सर्च करके देखो। हम्म। हाँ, तो अपना बेस अपने अपनी लाइन से डाइवर्ट मत करो, अपना बेस उसी में बनाओ, जी। पाइथन पे ही। मेरे लिए अच्छा है आप एमआईएस करोगे, बीबीए करोगे, उसके बाद जाओगे पाइथन में, बट दैट इज नॉट फेयर। मैं जो आपको फेयर बता रही हूँ कि कोडिंग में उतनी मेहनत करो, जॉब उतने ही लेवल की लगेगी एमआईएस लेवल की, अगर आप बेसिक एमआईएस का भी करते हो।
लेकिन अगर पाइथन पहले करते हो, एक तो टाइम बचेगा। सबसे बड़ी चीज आज वैल्यू किस चीज की है? टाइम की है, कि आप इंडस्ट्री में कितनी जल्दी एंटर करके और कितनी जल्दी ग्रो कर जाते हो। और आईटी में बूम आ रहा है, बूम आएगा, आईटी की जॉब्स निकल रही है। अभी एपटेक का एचसीएल के साथ में टाई अप था ड्यूरिंग लॉकडाउन, और पैन इंडिया बेसिस पे डेटा एनालिस्ट चाहिए थे। जितना आप एमआईएस एडवांस्ड में एफर्ट लगाओगे और पैसा लगाओगे ना, उससे थोड़ा सा तो मैंने गूगल पे ही कर करके सीख लिया है बहुत ज्यादा तब तो। नहीं करो वीबीए वगैरह, तो कोई फायदा नहीं है आपके बीटेक के बैकग्राउंड के लिए। ये अगर कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड का बंदा होता वो करता, उसको मैं कहती हाँ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद जीएसटी कर और अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की जॉब ले या एमआईएस में जॉब ले। आप अपनी टेक्निकल लाइन में जाओ, उसमें एफर्ट भी उतना लगेगा, टाइम भी ऑलमोस्ट उतना ही लगेगा, और पैसा भी उतना ही लगेगा, लेकिन अपनी फील्ड में आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो छोटे से थैंक यू कोर्स से, मैम। पाइथन के कोर्स से स्टार्ट करके देखो। मैम मैं अच्छा एक क्वेश्चन और था कि ये कितने दिन में हो जाता है पाइथन का कोर्स? पाइथन का 60 से 70 घंटे का कोर्स है प्रोजेक्ट के साथ में, विद माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल साथ में ही सिखाते हैं हम, कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी ले लो, 1 से 1.5 महीने में खत्म भी हो जाता है। और अभी पाइथन के लिए ठीक है मार्केट मैम। ओपन हो रही है, मैंने कहा ना कि पिछले से पिछले हफ्ते था, पाइथन की ओपनिंग्स आएंगी अभी। जी। तो मेन चीज अभी तो आपका प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कोई एक ऐसा कोर्स कर लें जिससे कि इंडस्ट्री में आपको ब्रेक मिले, एंट्री हो और जाए। उसके बाद अपनी स्किल्स को एनहेंस करें। जी। यस मैम, मैं भी सोचा था। यही पर्पस है ना, तो मत जाओ एमआईएस की तरफ। जी थैंक यू मैम। ये मैं आपको बहुत फेयर वो दे रही हूँ। आप एमआईएस करोगे, मेरा बहुत फायदा होगा, मैं एमआईएस में भी जॉब लगवा दूंगी। एमआईएस करोगे, फिर पाइथन पे जाओगे, फिर डेटा साइंस पे जाओगे, तो मेरे साथ तो आप बंद गए। लेकिन मैं आपको बिल्कुल फेयर चीज बता रही हूँ, हम गलत चीज नहीं बताएंगे। पाइथन करो, पाइथन में जॉब लो, और डेटा साइंस या एआईएमएल करो, बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि बैकग्राउंड वही है। आज डेटा ओके। साइंस जो है नॉन टेक्निकल वाले भी कर रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, एचआर के बंदे सीख रहे हैं, अकाउंट्स के बंदे सीख रहे हैं, क्योंकि डेटा साइंस में उसको पता है इवॉल्विंग है। गूगल करके देखना, डेटा साइंस में बहुत जॉब्स हैं। 1.5 लाख पीपल आर रिक्वायर्ड इन कनाडा। इंडिया की जॉब्स पे देखो, आज की डेट में भी अगर गूगल कर लोगे ना, आज से 2-4 दिन पहले भी जॉब्स काफी पोस्ट हुई हैं डेटा साइंस की। हम्म। और इंडिविजुअली पाइथन के लिए भी हमारे पास में ओपनिंग्स आती रहती हैं, ओपनिंग्स आती रहती हैं, ओपनिंग्स हैं अभी पाइथन के लिए। जी मैडम। ठीक है, मैं यही करता हूँ अब पाइथन। हाँ बिल्कुल, अपने जो उससे रिलेटेड करो, जो कि फील्ड से रिलेटेड है, डाइवर्ट मत करो। क्योंकि इतना टाइम एफर्ट लगा के, मेन चीज़ है टाइम की वैल्यू है, कि कितना टाइम आप यूटिलाइज करके कितनी जल्दी सबसे आगे बढ़ सकते हो, वो चीज़ मेन है। कौन से ईयर में पास आउट किया था आपने बीटेक? ठीक है। मैंने 16 में। ओके, ठीक है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप करो, एंटर करो इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में एंटर करो, आईटी में बहुत बूम है। ओके मैडम। ठीक है, अब एमआईएस वगैरह तो अकाउंट्स वगैरह के लोग भी बहुत करते हैं, सब लोग करते हैं। जी। चलिए ठीक है, और कोई क्वेरी तो नहीं है आपको? ठीक है सर। नहीं नहीं, अब और नहीं है। थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट। तो राशि मैम आपसे कनेक्ट